Hello everyone, welcome back in Python's class, and let's continue with the discussion libraries in Python, right? Part 2. Let's discuss about the built-in function first. So what are the built-in functions we are having and what are these built-in functions? Python standard library is very extensive that offers many built-in functions that you can use without having to import any library, right? So built-in functions are those functions those you can use without having import any library. That means for using these built-in functions, you don't need to import any library, right? Rather, you can directly use those functions. For example, we are using input function from like the starting, okay, to get some input from the console in keyboard input, right? तो वो कुछ functions हैं यहाँ पर ये जो कि आपको बिना किसी लाइब्रेरी को import की available हो जाते हैं. So those are known as standard library functions, or you can say the built-in functions. Python's standard library is by default available, so you don't need to import it separately, right? The Python interpreter has a number of functions built into it that are always available. You use built-in functions of Python directly as function name and arguments if any, right? Whatever be the arguments. All right. तो that is very simple to use them. तो जैसे हम यूज करते भी आ रहे हैं अपने, अगर कहीं इनपुट लेना है, सपोज हम यूज कर रहे हैं इनको. फॉर एग्जांपल, suppose we need to write input function, how we can do so? Suppose हमें एक name input कराना है, name equals to this input, ठीक है. उसके आगे पीछे हमें कुछ और लेने की जरूरत नहीं, सीधा हम इसे यूज कर सकते हैं. तो like this input and whatever the message, enter your name. Like this. So this is how we can write or we can use inbuilt functions. So no need to have any import and all, right? So this directly we need to use. Rather, if we want to use some function of the maths class, so how we can use it? So if sorry, maths module or maths library. So how we can use it? First, we need to import say maths, right? And then we can use it like p equals to maths dot power to the power 4, like this. तो दिस इज द डिफरेंस. तो ऊपर जो हमने इनपुट फंक्शन यूज किया है वो बिल्ट इन फंक्शन है, जबकि अभी हमने जो मैथ का फंक्शन यूज किया है दैट इज फ्रॉम द मैथ लाइब्रेरी. तो उसके लिए हमने इंपोर्ट कराया है मैथ को और उसके बाद हम मैथ डॉट पावर करके उसे एक्सेस कर पा रहे हैं. लाइक दिस वी कैन यूज इट. ओके, वेल मूव ऑन. ओके, लेट्स सी सम बिल्ट इन फंक्शंस. जैसे भी इनपुट तो हमने देखी, इसके अलावा हमारे पास क्या है, वी हैव ऑक्ट फंक्शन. ऑक्ट फंक्शन जो कि ऑक्टल स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा रिप्रेजेंटिंग और इक्विवेलेंट टू द गिवन डेसिमल नंबर, ठीक है, व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 o. 0 o indicates that the number is an octal number, ठीक है. Hex is going to return the hex string for given number, and which is an hexadecimal uh, representation of the decimal number, right, which starts with a 0x. Bin is for binary representation of the given decimal number, right, so it starts with the O0B. Let's check out the example. We have the example. Simply we are using oct, hex and win. So we provided 20, okay, as a decimal number, right? So 20 को भी print करा लेते हैं. Print 20, right? So 20 is simply a decimal number
and we want to convert it, or we want to display it in a different format like octal, hexa, and binary format. So see what will be the output. Say here is the output, you can see. तो यहाँ पर अभी आ गया है 20, तो 20 यहाँ पे एज इट इज डिस्प्ले हो गया, जो हमारे पास वैल्यू थी वो 20 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेकंड है हमारा ऑक्ट 20 दिखा रहा है 0 ओ, जैसे कि बात हुई थी यहाँ पे 0 ओ के साथ ये शो करेगा वैल्यू। तो जो 20 डेसिमल नंबर है दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्ले एज 24 इन ऑक्टल, तो 0 O 24। एंड जब अभी हम 20 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन होगा 0x14, राइट, लाइक दिस। एंड ये आ गया आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0B10100, लाइक दिस। Okay, let's continue. Note, these functions do not return any number, they return a string representation of the converted number, right? तो ये हमें string return करते हैं, ना कि कोई number. Int, this is also a function which we are like about to use many of times. We are regularly using this function. Returns the integer from a given argument. तो एक कोई भी नंबर अगर हमने डेसिमल में दिया है तो उसमें से आप इंटीजर को पार्स कर सकते हो, ओके, या फिर अगर आपने कोई स्ट्रिंग दी है तो आप स्ट्रिंग में से भी इंटीजर को पार्स कर सकते हैं। फ्लोट, फ्लोट में भी आप नंबर स्ट्रिंग पास कर सकते हैं एंड यू विल गेट द फ्लोट वैल्यू और द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आउट ऑफ द गिवन argument. Round, you can use it for rounding up the number. वही आपने कोई नंबर दिया है और आप एंड डिजिट्स तक उसे राउंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ डिजिट तक आपको डेसिमल राउंड ऑफ करने हैं। इवन अगर आपने नहीं कोई भी इनपुट दिया तो ये आपको नियरेस्ट इंटीजर तक पहुंचा देगा, राइट, नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ कर देगा, राइट। कहने का मतलब है कि अगर डेसिमल के बाद जो वैल्यू है 0.5 से कम होती है तो जो लोअर वैल्यू है मतलब जो ट्रंकेट हो जाएगा बेसिकली डेसिमल, और अगर 5 से ऊपर होती है 0.5 से ऊपर वैल्यू तो फिर उस केस में +1 आपके इंटीजर में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इनपुट दैट वी आर using right from the starting, right, so returns the keyboard input, okay, as string, right। Okay, let's check out the example. We have the example. सही, हमें एक नंबर रीड करना है फ्लोट टाइप में, तो हमने फ्लोट टाइप में नंबर रीड किया, इनपुट एंटर रियल नंबर, ठीक है, एक रियल नंबर हमने इनपुट में एंटर कराया, जो इनपुट से वैल्यू मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग को हमने फ्लोट में टाइपकास्ट किया है, ठीक है, एक तरीके से फ्लोट में कन्वर्ट किया है और फिर नम में स्टोर किया है। एंड देन आई नम इक्वल्स टू इंट नम, ठीक है, तो जो भी नम हमारे पास वैल्यू आ रही है हमने उसको इंट में टाइपकास्ट किया, लाइक या कन्वर्ट किया, एंड वो आइनम में आ गया, राउंड कराया हमने यहाँ पर तो नम को राउंड किया आर, इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी है तो आर नम यहाँ पे मतलब एंड डिजिट नहीं है कोई भी, तो दैट मीन्स कि ये नियरेस्ट इंटीजर तक लेके जाएगा। और उसके बाद हमने दिया आर नम 2 इक्वल्स टू राउंड नम 3 डिजिट, तो यहाँ पे इस तरीके से 3 डिजिट तक लेके जाएगा। एंड देन फाइनली हम यहाँ पर वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से ये काम करेगा। रन कराया, एंटर अ रियल नंबर, हमने रियल नंबर किया 125.4687 एंटर कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये हमारा नंबर एंटर हुआ, ठीक है, कन्वर्टेड टू इंटीजर इन 2 ways एज 125 एंड 125, राइट। तो यहाँ पर ये 2 ways में
आई नम और आर नम, तो राउंड ऑफ किए हैं दोनों को हमने, तो राउंड यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर तक लेके जा रहा है, तो क्योंकि 4 से शुरू हो रहा है इसलिए वो आपका 125 आ गया है। ठीक है, तो राउंड करके 125 हो गया और खाली इंट करके भी 125। इंट सिंपली क्या करेगा, ये जो सारी वैल्यू है इसको ट्रंकेट कर देगा, और जो राउंड कर रहा है यहाँ पे, तो राउंड में 125 आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे डेसिमल 4 है। ठीक है, तो डेसिमल 4 करके कुछ वैल्यू है, तो दैट इज वाई इज गोइंग टू बी 125। अगर ये यहाँ पे 5 प्लस कुछ होता तो फिर हो जाती आपकी 126 राउंड। ठीक है, इसी तरीके से हमने राउंड को यूज किया है विद एंड डिजिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 हमने दिया हुआ है, तो राउंड को एंड डिजिट के साथ जब हम काम कराएंगे तो क्या करेगा, राउंड 3 डिजिट तक, यानी कि ये 3 डिजिट इस तरीके से करना चाहिए, तो लास्ट के 2 डिजिट ये आपके यहाँ से ट्रंकेट होने वाले हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो ये प्लस हो जाता है यहाँ पे वो डेसिमल वाला मैथ्स का फंडा, तो लाइक दिस ये आपका आउटपुट देगा। Right, you can have both the program as well as output in one string so that you can note it down. So here you have both the program and its output on one screen so that you can note it down. All right, let's continue. Now, let us now use some string functions. Okay, that is something different what we have discussed in string itself. राइट, str.join। ठीक है, तो ये ज्वाइन फंक्शन है जो कि आपको यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई स्ट्रिंग को ज्वाइन कराना है स्ट्रिंग के अंदर किसी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ज्वाइंस अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर ईच member of the string iterator, that is a string based sequence, right? Split is going to split your string from or wherever you find the string and character supplied, right? तो जो भी करेक्टर और स्ट्रिंग हम पास करने वाले हैं उस करेक्टर और स्ट्रिंग को ढूंढकर वहां से आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, पार्ट्स में डिवाइड कर देगा और एक हमें रिटर्न करेगा लिस्ट बनाकर, राइट? विल सी कैसे। Replace is going to replace a particular word from a given word, right? तो क्या रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है ये आप बता सकते हैं, इससे आपका ये रिप्लेस काम करेगा। Let's take the example. ओके, तो वी हैव अ स्ट्रिंग st। हमने यहाँ पे कहा एंटर एनी स्ट्रिंग, ठीक, एंड देन स्ट्रिंग जिसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर जिस स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं jc डॉट ज्वाइन हमने कॉल किया, जिसमें ज्वाइन करना चाहते हैं उसको पास कर दिया। देखिए किस तरीके से आउटपुट दिखाएगा, लेट्स चेक इट आउट। रन कराया हमने इसको, ठीक है, एंटर स्ट्रिंग, तो हमारी मेन स्ट्रिंग होगी आशीष। क्या ज्वाइन करना चाहते हैं, हम ज्वाइन करना चाहते हैं ये, ठीक है, सी। तो यहाँ आशीष के हर कैरेक्टर के बाद, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन $, ये यहाँ पर ऐड हो गया। ओके, दिस इज हाउ ज्वाइन वर्क्स। ओके, ज्वाइन को आप सिंगल स्ट्रिंग के साथ साथ आप एक स्ट्रिंग लिस्ट पर भी यूज कर सकते हैं या स्ट्रिंग ट्रिपल पर भी यूज कर सकते हैं। हाउ, तो सपोज अगर लिस्ट के साथ काम करना है तो ये हम इस तरीके से लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स हियर, 2 स्ट्रिंग्स हियर, वन इज हेलो एंड अनदर वन इज वर्ड। तो हमने जब यहाँ ज्वाइन कराया है, ये हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी एस्ट्रिक, तो एस्ट्रिक को हम एज यहाँ पे ज्वाइनिंग करेक्टर या ज्वाइनिंग स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं, तो जिसको ज्वाइन करना है तो यहाँ डॉट ज्वाइन, और इसमें हमने पास कर दिया एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स के बीच में ये कैरेक्टर ऐड हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से आउटपुट आएगा इसको, सही लाइक दिस, हेलो
star word. Okay, same way you can use it for tuple as well. तो इस तरीके से करेंगे. हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग दिया है, स्पेस प्लस एंड स्पेस डॉट ज्वाइन, ज्वाइन कराया हमने यहाँ पर. ये कुछ हमारे पास में वर्ड्स हैं इन द टपल, तो ये सम स्ट्रिंग्स आर ज्वाइन टुगेदर. सेव कीजिए, कंपाइल. सम प्लस स्ट्रिंग्स प्लस आर प्लस ज्वाइन प्लस टुगेदर लाइक दिस. तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप आपके मतलब स्ट्रिंग जो आप ले रहे हैं उसके हर एक कैरेक्टर के साथ कुछ कंटेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, कैरेक्टर या फिर कोई स्ट्रिंग, तो वो आप कर सकते हैं. या फिर अगर आपके पास में एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में भी अगर आप सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को यानी कि स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके कंबाइन स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं विद सम वैल्यू, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं. एक और चीज यहाँ पर हम कर सकते हैं, इफ यू वांट कि ये जो स्ट्रिंग है वो एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाए और उसमें आपको यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कुछ नहीं चाहिए, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं. हमने क्या किया इस केस में, हमने यहाँ पर जस्ट स्पेस प्रोवाइड किया है. तो देखिए किस तरीके से आएगा, यहाँ पे सिंपली हेलो वर्ड आ जाएगा. तो वी हैव हेलो वर्ड इन दिस. तो इन दिस केस अगर आप चाहें तो यहाँ पर किसी वेरिएबल में भी इसे स्टोर कर सकते हो, लाइक st इक्वल्स टू, और फिर आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं से st को. ठीक है, तो एक सिंगल स्ट्रिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी ज्वाइन करके. तो दैट वुड बी वन यूज ऑफ दिस ज्वाइन, राइट. देखिए आ गया यहाँ पर इस तरीके से हेलो वर्ड. ओके, तो बीच में हमने क्या लगा दिया, स्पेस लगा दिया सिंपली. Right, let's move on. Let's check out one more example. Simply split कैसे यूज करेंगे, एंटर एनी स्ट्रिंग, ये हमने स्ट्रिंग एंटर कराया. ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि किस कैरेक्टर या स्ट्रिंग के बेसिस पे हमें स्प्लिट करनी है गिवन स्ट्रिंग को, तो वो हमने एसपी में इनपुट करा लिया. एंड देन वी आर जस्ट यूजिंग स्प्लिट. तो st जिस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है उसके ऊपर आपने स्प्लिट मेथड कॉल करना है और पास करना है वो स्ट्रिंग या कैरेक्टर जिसके बेसिस पर आपको स्प्लिट करना है. तो ज्वाइन से थोड़ा अलग यहाँ पे होगा, या कह सकते हैं कि ज्वाइन का ही एग्जीक्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, दिस इज अ टेक्स्ट string to test split function, राइट. और हम यहाँ s के बेसिस पे इसको स्प्लिट करना चाहते हैं. तो आप देख सकते हैं जहां जहां भी s मिलेगा वहां से स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी, और हर एक स्प्लिटेड स्ट्रिंग जो आएगा वो एक लिस्ट के एलिमेंट के फॉर्म में हमें मिल जाएगा. तो सबसे पहले thi फिर s मिला, तो thi एक स्ट्रिंग बन गया, और उसके बाद आई जो है वो दूसरा स्ट्रिंग हो गया एस तक. उसके बाद फिर स्पेस से लेकर के टेक्स्ट तक ये पूरा, क्योंकि एस यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रहा है, स्ट्रिंग का एस. फिर उसके बाद जैसे अगला मिला टेक्स्ट का एस मिला, यहाँ तक एक स्ट्रिंग. और उसके बाद एस यहाँ पर मिला, और फिर लास्ट पूरा एक स्ट्रिंग. इस तरीके से आप कर सकते हैं, लाइक दिस. Let's check out one more example that is more useful example. Say here what we are doing is, first of all we are getting some string input, and then हम यहाँ कुछ की फॉर इंक्रिप्शन रीड कर रहे हैं. ठीक है, एंड वी वांट कि जो भी हमने मेन स्ट्रिंग एंटर कराई है तो वो उस मेन स्ट्रिंग में जो की है वो यहाँ पे इनक्रिप्ट हो जाए. ठीक है, यानी कि जो हमने स्ट्रिंग दी है वो स्ट्रिंग जो हमारे की के साथ में इनक्रिप्ट हो जाए, और ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमें दिखाई दे, जिसमें स्ट्रिंग के बीच में जो कीज हैं वो ऐड हो जाए. ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया इनक्रिप्ट, पास किया मेन स्ट्रिंग और की स्ट्रिंग.
ठीक है। तो ये जो हमारी मेन स्ट्रिंग आई इंक्रीमेंट फंक्शन में वो एस टी में आ गई, और जो की स्ट्रिंग है वो ई की में आ गई। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ई की डॉट ज्वाइन एस टी, तो एस टी में जो भी लेटर्स होंगे उसके बीच में हमारे ई की जो है वो ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जो कंबाइंड स्ट्रिंग बनेगी वो इससे रिटर्न करेगा, जो कि हमने यहाँ पे एन स्ट्रिंग यानी कि एनकोडेड स्ट्रिंग में रख दिया है। ठीक है, इसके बाद हमने डिक्रिप्ट कराया। डिक्रिप्ट कराने के लिए हमने क्या किया है, डिक्रिप्ट कराने के लिए एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग पास किया और की स्ट्रिंग पास किया। एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग फिर से एसटी में हमने ले लिया और यहाँ पे ई की में हमने रखा हुआ है। तो ये स्प्लिट कराना है तो एस टी डॉट स्प्लिट, ठीक है, और उसमें ई की पास कर दिया, तो जहां जहां ई की मिलेगा वहां से स्प्लिट हो जाएगा, और वो स्प्लिटेड जो की हमारे पास है वो हमें मिल जाएगी एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर, लेकिन हमें तो एक स्ट्रिंग चाहिए। तो हमने क्या करना है, जैसे अभी पीछे किया था, तो एक ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पर बीच में लेकर, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई गैप था नहीं तो इसलिए हमने स्पेस नहीं दिया है, केवल ब्लैंक स्ट्रिंग दिया है, डॉट ज्वाइन और डी स्ट्रिंग यहाँ दिया, तो इससे क्या करेगा, ये ज्वाइन करा देगा यहाँ पे डी स्ट्रिंग को ब्लैंक स्पेसेस के साथ में, यानी कि जो ब्लैंक है वो आ जाएगा यहाँ पे सिंपली, और एक कंप्लीट वर्ड हमें वापस मिल जाएगा। देखिए क्या आउटपुट आता है इसका। ठीक, स्ट्रिंग भी है आशीष, और यहाँ पे हमने कुछ इंक्रिप्शन की हुई लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए जो इंक्रिप्ट हुआ, तो इंक्रिप्शन की बीच बीच में आ गई, जैसे ए के बाद ये इंक्रिप्शन की, फिर एस के बाद ये इंक्रिप्शन की, फिर एच के बाद ये इंक्रिप्शन की, फिर आई के बाद इंक्रिप्शन की, लाइकवाइज इस तरीके से सारा आ गया, और ये यहाँ पे आशीष वापस से डिक्रिप्ट होके आ गया। पहले हमने क्या किया, इसके बेस पे स्प्लिट किया, स्प्लिट करके हमें एक लिस्ट मिलेगी, और फिर हमने उस लिस्ट को ज्वाइन करा दिया ब्लैंक के साथ, ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ, और फिर फाइनली हमें जो ओरिजिनल मेन स्ट्रिंग थी वो वापस मिल गई। ओके, लाइक दिस। Right, let's continue. Let's discuss about the random module. So Python has the module named random that provides random number generators. So we have numerous methods here. A random number is a simple words means a number जनरेटेड रैंडमली। ठीक है, तो रैंडम जनरेटेड नंबर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बाई चांस कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, we can use the random number generator in your Python program. We first need to uh, import the module random using import command. तो अगर हमें रैंडम जनरेटर्स को यूज करना है तो उसके लिए हमें पहले रैंडम पैकेज को या मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाउ, ठीक है, लाइक इंपोर्ट रैंडम एंड देन वी कैन यूज द रैंडम फंक्शन। Two most common random number generator function in random module are random and the randint. Random, it returns a random floating point number and in range 0.0 to 1.0, right? Where 1.0 is not included, right? It is exclusive, right? तो अभी यहाँ पे रिटर्न करने वाला है 0 से लेकर के 1 तक का कोई भी नंबर, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से कोई भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करेगा, राइट, रैंडम। ठीक है, रैंडम जो आपको रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा ए और बी के बीच के नंबर, गिवन ए और बी के बीच के इंटीजर नंबर। तो जैसे अगर हमने ए और बी दिया है तो जो एन होगा दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू ए एज वेल एज greater than equals to a and less than equals to b, right? तो जो n है that n could be in between a and b, तो a से शुरू करके b तक, तो a और b दोनों को इंक्लूड यहाँ पे किया गया है। तो a अगर 10 है और b अगर 20 है तो लाइक 10 से लेके 20 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें रैंडम की तो रैंडम में 0 से लेकर के 0.999999 तक के नंबर आएंगे, 1 नहीं आएगा, राइट? तो लेट्स चेक इट आउट।
देखिएगा कैसे हमने किया है। यहाँ पर सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये जनरेट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है रैंडम। ठीक है, तो रैंडम यहाँ पर पैकेज नेम है, ठीक है, मॉड्यूल नेम है, डॉट रैंडम अभी ये फंक्शन नेम भी है, तो आपको लिखना पड़ेगा रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, सिंपली हमने ये किया है। देखिए रन कराते हैं इसको। ठीक, तो ये देखिए कुछ नंबर जनरेट हो गया 0.072 राइट समथिंग। इस तरीके से एक बार फिर से रन कराया, कुछ और नंबर यहाँ पे जनरेट होगा। देखिए 0.3187 ऐसा कुछ नंबर जनरेट हो गया, फिर से रन कराया, फिर कोई नंबर। तो हर बार कोई एक डिफरेंट नंबर ये जनरेट करेगा, बट जनरेट करेगा फ्रॉम 0 to 1, इन बिटवीन 0 and 1। ठीक है, वेयर 1 इज एक्सक्लूसिव राइट। जैसे कि हमने इंपोर्ट में बात की थी कि दो टाइप से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट पैकेज और द मॉड्यूल, और फ्रॉम इंपोर्ट एज वेल। तो जब आप फ्रॉम इंपोर्ट यूज करते हैं तो फ्रॉम इंपोर्ट में आपके पास में क्या बेनिफिट होता है कि आपने फ्रॉम किया, फ्रॉम पैकेज नेम और द मॉड्यूल नेम, इंपोर्ट द फंक्शन नेम। तो आपने स्पेसिफिक फंक्शन को रेफर कर दिया यहाँ पर दैट यू वांट टू इंपोर्ट दैट फंक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट रैंडम, आप सीधा रैंडम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको मॉड्यूल को प्रीफिक्स करने की जरूरत नहीं है, बाकी काम सेम करेगा। देखिए भी यहाँ पे क्या रहा है 0.346 राइट। तो हर बार एक डिफरेंट नंबर जनरेट करेगा। ये सिर्फ माइट पॉसिबल कि जो नंबर पहले जनरेट हो गया है वो रिपीट भी हो जाए, हो सकता है ऐसा कि नंबर जो पहले जनरेट हुआ है वो रिपीट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट किया है विद इन अ रेंज। तो रेंज है हमारे 10 to 20। तो इसके लिए क्या तरीका होगा, रैंडम मल्टीप्लाई 20 माइनस 10, जो कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड है। ठीक है, प्लस लोअर बाउंड आपने यहाँ पे किया है। तो 10 and 20 के बीच के नंबर जनरेट करने के लिए ये तरीका हो सकता है, इसको आप रन कराइए। तो 10 and 20 के बीच का कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करके ये आपको देगा। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करना है इंटीजर टाइप के, तो उसके लिए आप सीधा सीधा रैंडम यूज कर सकते हैं 10 to 20। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। सिंपली कोई भी 10 to 20 नंबर ये जनरेट कर देगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल। Okay, we can use the random like this also. Suppose we are using like 105 to 115, तो ये एक्चुअली जनरेट करेगा 105 से 115 तक के नंबर। लेकिन हमने यहाँ पे -100 कर दिया, तो जो भी नंबर जनरेट होगा उसमें से -100 हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन से कि आपका जो नंबर एक्चुअली में जनरेट होगा वो 5 to 15 यहाँ पे जनरेट होगा। लेट्स चेक इट आउट। See 14 within the range 5 to 15। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम्स में भी ऐसा आ सकता है। वन मोर यूज ऑफ रैंडम। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रैंडम यूज कर रहे हैं एज वेल एज मैथ भी यूज कर रहे हैं। तो मैथ के सील और फ्लोर दो फंक्शन यूज कर रहे हैं, और रैंडम का रैंडम फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने फ्रॉम इंपोर्ट यूज किया है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने किया सील रैंडम, ठीक है, एंड फ्लोर रैंडम। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, सील रैंडम कर रहे हैं, फ्लोर रैंडम कर रहे हैं। तो जब हम सील रैंडम करेंगे तो नेक्स्ट अपर इंटीजर मतलब जो नेक्स्ट कमिंग इंटीजर है उस पर जाता है, और फ्लोर जो है वो डाउनग्रेड करता है। तो जो हमारा ओरिजिनल इंटीजर है मतलब वो देता है। तो जो वैल्यू जनरेट होगी रैंडम से वो 0 पॉइंट समथिंग से लेकर 1 तक जनरेट होगी। तो 0 पॉइंट समथिंग जब भी जनरेट होगा तो उसमें जब हम सील करेंगे 1 पे चला जाएगा। और जब हम 0 पॉइंट समथिंग करेंगे रैंडम के साथ फ्लोर डालेंगे, तो फ्लोर में अगर हम 0 पॉइंट समथिंग डालेंगे तो विल गेट द 0। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे जितने बार भी रन कराइए आपको यहाँ सील और फ्लोर की वैल्यूज 1 और 0 ही मिलने वाले हैं। ओके, लेट्स चेक इट आउट।
See, output is 1 and 0. So basically random is not at all affected here. Okay, let's move on. Right, one more thing we can use it, like हम यहाँ पे पावर फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक आपने ये अगर किया हुआ है तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज और उसके कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे, तो आपको देखना होगा कि क्या पॉसिबल वैल्यूज है जो यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि 2 to 4 हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो रैंडम नंबर जनरेट होगा 2, 3 एंड 4, कोई भी इन तीनों में से एक। और जब आप इसको पावर फंक्शन में देंगे, क्योंकि पावर बाई 2 किया हुआ है, तो रेस टू दी पावर 2 होने वाला है इन तीनों वैल्यूज के साथ में। तो जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं यहाँ पर वो आ सकते हैं 4, 9 एंड 16। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन 4, 9, 16 का, 4, 4, 16 का, 9, 4, 16 का, 16, 4, 4 का, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है। तो इस टाइप का कोई अगर आउटपुट प्रॉब्लम्स आती हैं आपके सामने, तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे क्या देखिए, हर बार एक नया कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, तीनों के साथ हम बात कर रहे हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग वैल्यूज, जैसे यहाँ 9, 9, 16 आया, 16, 16, 9 आया। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि तीनों के लिए जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं क्या वो हमें दिए गए हैं, तो फिर उन्हें चूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल आउटपुट्स को आपको यहाँ पे चेक करना होता है, राइट। नॉर्मली ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। Alright. Okay. Thank you for today. We'll meet in next session with some new topics. Till then, bye.